Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with the Vedic civilization in this crash course series. इस क्रैश कोर्स सीरीज में आज हम वैदिक सिविलाइजेशन से शुरू करने वाले हैं बिकॉज वैदिक सिविलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो आपके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसको कवर किए बिना आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री तो नहीं पढ़ सकते, राइट? तो दैट इज व्हाई दिस वी आर गोइंग टू कवर इट. नाउ वी आर गोइंग टू कवर इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स इन फ्लो चार्ट फॉर्मेट. हम वैदिक सिविलाइजेशन को ना फ्लो चार्ट फॉर्मेट में आज पढ़ेंगे. फ्लो चार्ट फॉर्मेट हेल्प्स यू टू रिवाइज वेल बिफोर योर एग्जाम, राइट? तो एग्जाम से पहले आपको रिवीजन के लिए ना शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं, तो वो हम क्लास में ही बनाएंगे. डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द क्लास. क्लास शुरू करते हैं. नाउ बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, हियर्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. आप सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है एंड दैट इज रिगार्डिंग अनअकैडमी CSE मेंटोर्स वर्कशॉप, wherein two mentors are going to meet and are going to explain to you what is the use of space technology for the growth and security of the nation. It's important not just for GS paper 3 but your essay paper also as well as your interview, right? तो ये आपके UPSC CSE प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करने जा रहे हैं श्री किरण कुमार, हु इज इंडियन स्पेस साइंटिस्ट, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ISRO, and our Unacademy's top educator, also retired IRS officer, Shri Rakesh Verma sir. This class will be conducted on December 12th at 5 p.m. Link is given below in the description box. It's a free class, free lecture है ये, and you can use this code ARPITA10 to unlock the free class on Unacademy Plus. Unacademy Plus पे कोई भी स्पेशल क्लास, कोई भी मॉक टेस्ट अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हो तो आप ARPITA10 कोड यूज करके उसको अनलॉक कर सकते हो. So do download the Unacademy learning app, register yourself or sign in, choose the goal as UPSC CSE and start watching these free classes. Okay, use code ARPITA10 to unlock these free lectures. Let's start the class. Class शुरू करते हैं without any delay. So let's start the class. Also, if you wish to subscribe to Unacademy Plus, you can use my code Sharma20 to get 10% discount on Unacademy Plus. Unacademy Plus पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है Sharma20 कोड यूज करके. Let's start. Vedic civilization. We are going to study the Vedic age. आज हम पढ़ने वाले हैं Vedic age. And I expect all of you to make these flowcharts in the class, simultaneously. जैसे जैसे मैं फ्लो चार्ट्स बनाती जा रही हूँ आप लोग भी नोट डाउन करते रहो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा रिवीजन के टाइम पर, ठीक है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वैदिक एज, द टाइम पीरियड ऑफ वैदिक एज विल बी बिटवीन 1500 BC to 600 BC. This will be the time period of Vedic age. Make sure that you are making these flow charts. They are going to be very helpful for all of you. And it is said that the first urban civilization was the Harappan civilization. पहली urban civilization क्या पढ़ी थी हमने? Harappan civilization we studied, right? Now after Harappan civilization came the Vedic age, wherein we attained knowledge of the Vedas, जहाँ पर हमें वेदों की knowledge मिली थी, ठीक है? So this is the next major civilization in the ancient India after the decline of Indus Valley civilization, which happened around 1400 BC, right? And it is said that in this age the Vedas were composed. इस age में क्या हुआ था? वेदों की रचना हुई थी. The Vedas were composed in this age, ठीक है? That is why the name is Vedic age, ठीक है? And it is said that these Vedas, they are also the chief source of information about this era. इस era के बारे में हमें जो भी information मिली है वो सपने में नहीं आई है, वो हमें वेदों से पता चली है. We come to know about this age because of the Vedas only. So chief source of information about this age are the Vedas. वो हैं आपके Vedas. So it is said that the Vedic age, another point is that the Vedic age, VA means Vedic age. It started with the coming of the Aryans. आर्यंस जैसे ही इन्वेड करते हैं भारत को तभी से वैदिक एज शुरू हो जाता है. यू कैन कॉल देम इंडो आर्यंस ऑल्सो,
क्योंकि वो इंडिया भारत में आए हैं तो इंडो आर्यंस, दिस विल बी द नेम विच विल बी यूज्ड, ठीक है, ये नाम यूज होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वैदिक एज, जब हम वैदिक एज की बात करते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। ये जो वैदिक एज है ये 2 पीरियड्स में डिवाइडेड है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दीज 2 पीरियड्स आल्सो इन द क्लास। Today's class is going to be very helpful for all of you for your upcoming prelims and mains examination. Okay, because literature part art and culture में आता है, वैदिक एज का लिटरेचर हम prelims और mains दोनों के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। So the first part of Vedic period is known as the early Vedic period, ठीक है, या आप बोल सकते हो इसको, you can also call this as the Rig Vedic age, ठीक है, the early Vedic age और द ऋग वैदिक एज, दिस इज द फर्स्ट फेज, ठीक है। और ये जो फेज है ये 1500 से 1000 BCE तक चलता है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एज, दैट इज द नेक्स्ट फेज ऑफ वैदिक एज, दैट इज नोन एज द लेटर वैदिक एज। इसको हम बोलते हैं लेटर वैदिक एज, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 1000 to 500 BCE, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन द लिटरेचर इन बोथ द एजेस, लिटरेचर ऑल्सो डिफर्ड, दोनों ही एजेस में लिटरेचर में भी डिफरेंस आया है, ठीक है। सो द अर्ली वैदिक एज ऑन द टर्म्स ऑफ लिटरेचर, इट इज ऑल्सो नोन एज द अर्ली वैदिक लिटरेचर एज। इसको हम अर्ली वैदिक लिटरेचर एज भी बोलते हैं, और वी ऑल्सो कॉल इट द ऋग वैदिक कल्चर, इसको हम ऋग वैदिक कल्चर भी बोलते हैं। सिमिलरली the later Vedic age is also known as the later Vedic literature, इसको हम later Vedic literature भी बोलते हैं, and it is also known as later Vedic culture, ठीक है, also known as later Vedic culture. When we talk about Ved, जब हम वेद की बात करते हैं, this word Ved, what does it mean? ये है क्या? It is the chief source of information about this age, but what is the meaning of the term Ved? वेद टर्म का मीनिंग क्या होता है? सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। व्हेन वी टॉक अबाउट वेद, वेद मीन्स नॉलेज, प्योर नॉलेज। वेद का मतलब होता है आपका प्योर नॉलेज, ठीक है। एंड इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, राइट इट डाउन, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड कॉल्ड विद। जो रूट वर्ड इसमें यूज हुआ है वो है विद, और विद का मतलब क्या होता है? टू नो। विद मीन्स टू नो, और नॉलेज जिसको हम ज्ञान भी बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज ज्ञान, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ज्ञान, ठीक है। यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? इफ द पॉइंट्स आर क्लियर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ वेद जो है इनिशियली इन द लेटर वैदिक, इन द अर्ली वैदिक पीरियड देयर वाज नो रिटन सोर्स ऑफ वेद, ठीक है। बिल्कुल अर्ली वैदिक पीरियड में ना वेद लिखित में नहीं थे, दे वर ओरल नॉलेज, दैट मीन्स द सेंट ही यूज्ड टू, द टीचर और द गुरु ही यूज्ड टू ओरली गिव दिस नॉलेज टू हिज डिसाइपल। जो गुरु हुआ करता था वो ओरली इस नॉलेज को दिया करता था। वेद आर ऑल्सो नोन एज श्रुति, वेद को श्रुति भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इन द वैदिक एज वी सी दैट वेदास आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। वैदिक एज में हम देखते हैं कि जो वेद हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ वेदास दैट वी हैव टू स्टडी फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। फर्स्ट इज नोन एज द ऋग वेद, पहले को हम क्या बोलते हैं? ऋग वेद बोलते हैं, द फर्स्ट ऋग वेद। सेकेंड इज नोन एज द साम वेद, सेकेंड को हम बोलते हैं साम वेद। थर्ड इज नोन एज द यजुर्वेद, थर्ड इज यजुर्वेद। फोर्थ इज नोन एज द अथर्व वेद, ठीक है, फोर्थ आपका हो गया अथर्व वेद। अथर्व वेद वॉज एडेड एट द वेरी लास्ट, सबसे लास्ट में अथर्व वेद ऐड किया गया था, ठीक है। अब ये जो चारों वेद हैं इनमें से सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, इट इज नोन एज द अर्लीस्ट वेद, इसको सबसे पहला वेद माना जाता है। एंड इट इज दी, राइट इट डाउन, कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स, यानी कि इसमें जो मंत्र हैं ना वो कितने हैं? 1028 मंत्र हैं इसमें, ठीक है, जिनका उच्चारण किया जाता है। एंड बेसिकली ये जो 1028 हाइम्स है ना, ये किससे रिलेटेड है? ये आपके आयुर्वेद से रिलेटेड है। इट इज, दे ऑल्सो मेंशन एंड दे ऑल्सो टॉक अबाउट आयुर्वेदा, ऋग्वेद में आयुर्वेद का भी मेंशन है, ठीक है।
Now Rigved is divided into 10 other books. Rigved is a combination of, write it down, this Ved is a combination, it is a combination of 10 mandalas. Mandalas means books. Mandalas का मतलब होता है books. It's a combination of 10 books or 10 mandalas, and these books, they show the life of, they depict the life of the early Vedic people. EVP मतलब है early Vedic people. Early Vedic people किस तरीके से उठते थे, बैठते थे, खाते थे, कपड़े पहनते थे, बोलते थे या रहते थे, वो सारे पॉइंट्स इसमें 10 मंडलास में, 10 बुक्स में दिए हुए हैं. एंड ऑल दी हाइम्स ऑफ ऋग्वेद, दैट मीन्स द कंप्लीट ऋग्वेद, ये जो पूरा ऋग्वेद है ना, ये पूरा का पूरा यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है. इन द यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ लिटरेचर इट इज इंक्लूडेड. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को. यूनेस्को की लिस्ट ऑफ लिटरेचर में ये मेंशन्ड है. इट इज मेंशन्ड वेरी क्लियरली. सो दे हैव ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड दी वैलिडिटी ऑफ ऋग्वेद. ऋग्वेद कितना सच्चा है, कितना रियल है, ये यूनेस्को ने खुद वैलिडेट किया है अपनी लिस्ट ऑफ लिटरेचर में इसको ऐड करके. ठीक है, सो ऋग्वेद इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं मॉडर्न टाइम्स में, इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज. ठीक है, वी ऑल्सो कॉल इट द वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज. यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को. नाउ अनदर थिंग अबाउट ऋग्वेद, अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द ऋग्वेदा, very important and interesting facts about Rigveda from the perspective of prelims are, first is we know that Rigveda is divided into 10 mandalas, यानी कि 10 books. ऋग्वेद जो है वो 10 किताबों में divided है. ठीक है, so the earliest mandala, that is the earliest book, जो आपका so in the Rigved the earliest mandala, mandala means book. ठीक है, इट इज नोन एज फैमिली बुक्स. जो अर्लीस्ट बुक्स है ना ऋग्वेद की, जो सबसे पहली किताबें लिखी गई हैं, उन्हें फैमिली बुक्स बोलते हैं. दैट मीन्स बुक नंबर 2 टू बुक नंबर 7. बुक नंबर 2 टू बुक नंबर 7 इन ऋग्वेद आर नोन एज अर्लीस्ट मंडलास. दे आर ऑल्सो नोन एज फैमिली बुक्स. Why they are known as family books? Because they talk about the families of, write it down, they talk about the families of very important rishis. Rishis means saints. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऋषिज की फैमिली की बात की गई है इन किताबों में. फॉर एग्जाम्पल भारद्वाज ऋषि, फॉर एग्जाम्पल अत्रि ऋषि, गौतम ऋषि. ठीक है, एटसेट्रा. जितने भी ये ऋषि हुए हैं, ठीक है, जितने भी महान संत हुए हैं, उनके परिवार की बातें की गई हैं ऋग्वेद में. ठीक है, इन द अर्लीस्ट मंडला विच इज नोन एज फैमिली बुक्स. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट मंडला, यानी कि नेक्स्ट बुक पे आते हैं, दैट इज बुक नंबर 8. बुक नंबर 8 की अगर हम बात करें, इन बुक नंबर 8 व्हाट इज मेंशन्ड, इस किताब में क्या मेंशन्ड है, इट इज रिलेटेड टू कन्वाज फैमिली. ये जो किताब है ये कन्वाज फैमिली से रिलेटेड है. नाउ यू विल बी वंडरिंग व्हाट इज कन्वा. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कन्वा कौन है. ठीक है, तो कन्वा भी एक ऋषि है. कन्वा इज ऑल्सो अ ऋषि. ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज, राइट इट डाउन, कर्नेश. इनको कर्नेश भी बोलते हैं. ही वॉज एन एंशिएंट हिंदू ऋषि. राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. एंशिएंट हिंदू ऋषि है ये. ठीक है, who has been discussed in mandal number 8, and he has attributed many hymns to the Rigveda. इन्होंने ऋग्वेद में काफी सारे मंत्र, काफी सारे श्लोक दिए हैं. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट मंडला और अनदर इंपॉर्टेंट बुक विच इज नोन एज मंडला 9. ठीक है, अब इस मंडल की अगर हम बात करें, when we talk about this mandal, it has the composition of Soma hymns. ठीक है, तो there is a demigod called Soma. एक demigod है जिनका नाम है सोम. ठीक है, तो वो demigod जो है उनके लिए
हाइम्स यानी कि उनके लिए श्लोक, उनके लिए मंत्र इसमें लिखे गए हैं मंडल 9 में। दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ये पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देन कम्स योर मंडल नंबर 1 एंड मंडल नंबर 10। अब बात आती है मंडल नंबर 1, दैट इज बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 10 की। सो व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, ये किसकी बात कर रहे हैं? दे एक्सप्लेन द 4 वर्णास। जो वर्ण सिस्टम हम पढ़ेंगे ना अभी आगे जाकर, वो किसमें एक्सप्लेन किए गए हैं? मंडल 1 एंड मंडल 10 में। इन द ऋग्वेदा बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 10 टॉक्स अबाउट द 4 वर्ण सिस्टम, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्यास। ये चारों वर्ण सिस्टम इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है। एंड इट इज सेड दैट एवरी वेद हैज एन उपवेद। हर वेद का एक उपवेद होता है, यानी कि एक्सटेंडेड वर्जन। व्हाट डू यू मीन बाय उपवेद? उपवेद इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ अ वेद, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ अ वेद। सो व्हाट इज द उपवेद ऑफ ऋग्वेद? ऋग्वेद का उपवेद क्या है? इसका उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है। इट्स उपवेद इज नोन एज आयुर्वेद, द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ऋग्वेदा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वेद विच इज नोन एज सामवेद। अब बात करते हैं सामवेद की। Again, Samaved is very important because all the mantras, all the hymns which were written in Rigved, ठीक है, to those hymns the music was added, the music was given, ठीक है, the tone, the you can say the lyrics were added, ठीक है, in the Rigveda, musical lyrics, and because that was done because of the help of Samaved only, ठीक है। तो Samaved provides you the melody। Samaved आपको क्या प्रोवाइड करता है? मेलेडी प्रोवाइड करता है, म्यूजिक प्रोवाइड करता है। ऋग्वेद के हाइम्स में जो मेलोडी डाली गई है, जिस म्यूजिक के साथ उन हाइम्स को, उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वो म्यूजिक सामवेद से आता है, ठीक है। सो सामवेद टोटल हैज 1810 मेलोडीज। इसके अंदर टोटल 1810 मेलोडीज हैं, ठीक है। देयर आर 1810 मेलोडीज इन सामवेद। पॉइंट्स आर क्लियर? सो सामवेद 1810 मेलोडीज। एंड व्हाट इज द उपवेद ऑफ सामवेद? इसका उपवेद क्या है? इट्स उपवेद इज नोन एज गंधर्व वेद। इसके उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। दिस इज द नेम ऑफ सामवेद्स उपवेद, गंधर्व वेद। यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज द कलेक्शन ऑफ वर्सेस। ये क्या है? म्यूजिकल वर्सेस का कलेक्शन। इट इज द कलेक्शन ऑफ द म्यूजिकल वर्सेस विच आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेद। जो कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से दिए गए हैं। एंड दीज वर्सेस आर ऑल्सो अरेंज्ड इन पोएटिक फॉर्म। इनको पोएटिक फॉर्म में अरेंज किया गया है, पोएम की फॉर्म में अरेंज किया गया है, ठीक है। नाउ इट ऑल्सो कंटेन्स, ये जो सामवेद है ना, राइट इट डाउन दैट इट ऑल्सो कंटेन्स द द्रुपद राग। आप सभी ने अकबर के दरबार में द्रुपद राग गाते हुए तानसेन को जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट तानसेन हु यूज्ड टू सिंग द्रुपद राग, ठीक है, इन द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। सो दिस द्रुपद राग हैज बीन टेकन फ्रॉम सामवेद ओनली। ये राग भी सामवेद से ही लिया गया है। दिस इज अ वे ऑफ सिंगिंग, ठीक है। सो इतनी बात क्लियर हो गई सबको? सो दिस इज ऑल अबाउट सामवेद। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेद, दैट इज नोन एज यजुर्वेद। अब बात करते हैं नेक्स्ट वेद की, जिसको हम कहते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद इज मिस्टिकल इन नेचर। मिस्टिकल मीन्स इट हैज सर्टन प्रैक्टिसेस विच आर बियॉन्ड ह्यूमन माइंड्स कंटेम्पलेशन। आपकी समझ से बाहर हो ऐसी बातें, ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी एक्टिविटीज यजुर्वेद में लिखी गई है, ठीक है। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द उपवेद। व्हाट इज द उपवेद ऑफ यजुर्वेद? इसके उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद, ठीक है। द उपवेद इज नोन एज धनुर्वेद, ठीक है। सो यजुर्वेद टॉक्स अबाउट mystical practices. Mystical practices means occult. It also means योग, ठीक है। It also means mastery of breath, ठीक है, यानी कि आप अपने ब्रेथ पे, श्वास पे कंट्रोल करना सीख जाओ। ऑल्सो दिस इज वन पार्ट ऑफ यजुर्वेद। ये तो एक पार्ट हो गया, मिस्टिक पार्ट हो गया ये तो आपका, ठीक है। अदर पार्ट ऑफ यजुर्वेद डील्स विद दी mantras which are used to perform rituals. like किस तरीके के रिचुअल्स? लाइक मैरिज, शादी के टाइम पे जो मंत्रों का उच्चारण होता है ना, वो यजुर्वेद से भी लिया जाता है। लाइक चाइल्ड बर्थ,
चाइल्ड बर्थ के दौरान जो नामकरण सेरेमनी होती है, द चाइल्ड नेमिंग सेरेमनी, ठीक है, उस दौरान जो मंत्रों का उच्चारण होता है, दैट इज टेकन फ्रॉम यजुर्वेद. देन लाइक डेथ, ड्यूरिंग डेथ, ठीक है, द प्रीस्ट ही चांट सर्टन मंत्रास, ठीक है, सो एट दैट टाइम ऑल्सो the mantras are taken from यजुर्वेद. For example, the जनेऊ सेरेमनी, जो आपका उपनयन सेरेमनी होता है, ठीक है, where the गायत्री मंत्र is also given to the person whose उपनयन is being done. तो उपनयन सेरेमनी में भी यजुर्वेद का यूज होता है, ठीक है. So these are the two parts of यजुर्वेद. And यजुर्वेद is divided into two parts. यजुर्वेद दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज नोन एज द शुक्ल यजुर्वेद. पहला हो जाता है आपका शुक्ल यजुर्वेद, विच डील्स विद ऑल दीज मंत्रास. इन सभी मंत्रास से डील करता है शुक्ल यजुर्वेद. देन वी टॉक अबाउट द कृष्ण यजुर्वेद. सेकंड आपका हो जाता है कृष्ण यजुर्वेद. कृष्ण यजुर्वेद टॉक्स अबाउट ओकल्ट, योगा, मास्टरी ऑफ ब्रेथ, ये सारी चीजें, मिस्टिसिज्म जो है वो कृष्ण यजुर्वेद में आती है. पॉइंट्स आर क्लियर? यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को यजुर्वेद के बारे में, ठीक है. ऑल राइट, कमिंग ऑन टू द लास्ट वेदा, दैट इज द अथर्व वेदा. अब लास्ट वेद पे आते हैं जिसको हम बोलेंगे अथर्व वेद. सो व्हाट एग्जैक्टली इज अथर्व वेद? अथर्व वेद डील्स विद मेडिसिन, ठीक है. इसके अंदर ना टोटल 711 हाइम्स हैं. देयर आर टोटल 711 मंत्रास. एंड व्हाट इज द उपवेद ऑफ अथर्व वेद? इसके उपवेद का नाम क्या है? इसके उपवेद का नाम है शिल्प वेद, ठीक है. नाउ अथर्व वेद टॉक्स अबाउट टू थिंग्स. ये दो चीजों की बात करता है. फर्स्ट इज द मेडिसिन ऑफ वेरियस डिजीजेस, अलग अलग तरीके के रोग होते हैं उनकी दवाइयों की बात करता है. सेकेंड, इट टॉक्स अबाउट आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर. तो आपको पता है वास्तुशास्त्र के बारे में, यू ऑल नो अबाउट वास्तुशास्त्र. व्हेनेवर यू परचेज एनी हाउस और यू कंस्ट्रक्ट एनी हाउस और एनी बिल्डिंग, then you look into the aspect of vastu shastra also, right? In which direction the bathroom should be built, in which direction that small shrine will be built in the house, in which direction your bed should be facing. So all these things are taken from अथर्व वेद only. ये सारी चीजें अथर्व वेद से ली जाती हैं, ठीक है. So it is said, it is considered that it is a non-Aryan work. Non-Aryan मतलब जो कि ब्राह्मण नहीं थे ना, ठीक है, उन्होंने इस वेद को लिखा है. द पीपल हु वर नॉट ब्राह्मण्स बट दे वर गंधर्व्स, दैट मीन्स द डेमी गॉड्स. जो डेमी गॉड्स होते हैं ना, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी कैटेगरी में नहीं आते, उन्होंने ये वेद लिखा है. इट इज स्पेक्यूलेटेड सो, ठीक है, ऐसा कहा जाता है. एंड दिस वेद कंसिस्ट ऑफ 20 बुक्स. इस किताब में ना 20 बुक्स हैं. एंड बुक्स आर नोन एज, इन अथर्व वेद द बुक्स आर नोन एज कंस, ठीक है. अथर्व वेद में बुक्स को हम कंद बोलते हैं या कांड बोलते हैं. इन ऋग्वेद द बुक्स आर नोन एज, ऋग्वेद में बुक्स को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ. जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड इन द ऋग्वेद द बुक्स आर नोन एज मंडलास. यस, वेरी गुड. सी ओवर हियर, यहाँ पर हमने पढ़ा था मंडलास. दीज आर नोन एज बुक्स. ऋग्वेद की किताबों को मंडल बोलते हैं. अथर्ववेद बुक्स आर नोन एज कांड और कंदास, ठीक है. इतनी बात सबको समझ आ गई. सो दिस इज अथर्ववेद. नाउ ईच ऑफ दीज वेद हैव उपवेद. हर वेद का उपवेद होता है. व्हाट इज उपवेद? द एक्सटेंडेड वर्जन, द एक्स्ट्रा नोट्स ऑन दैट पर्टिकुलर वेद आर एडेड इन उपवेद. होता है ना हमारी किताबों में लास्ट में कुछ पेजेस होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा नोट्स लिखे होते हैं, समरी लिखी होती है, तो ये होते हैं आपके अथर्व उपवेद. दैट इज नोन एज उपवेद. सम पॉइंट्स विच हैव बीन मिस्ड इन द ओरिजिनल वेद, दे आर एडेड इन द उपवेद. मान लो कुछ पॉइंट्स ओरिजिनल वेद में मिस हो गए लिखने, बाद में याद आए तो वो उपवेद में लिख देंगे. नाउ एवरी वेद हैज टू अनदर सेट ऑफ बुक्स. हर वेद की, ठीक है, एवरी वेद दे हैव 2 एक्स्ट्रा बुक्स. एक तो उपवेद तो हो ही गया जो इन वेदों में ही अटैच्ड होता है. 2 एक्स्ट्रा सेट ऑफ बुक्स एवरी वेद हैज. फर्स्ट इज नोन एज ब्राह्मणा. फर्स्ट को हम बोलते हैं ब्राह्मणास, ठीक है. ब्राह्मणास दे टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ चांटिंग द हाइम्स विच आर लिस्टेड इन द वेदास. इन वेद में जो मंत्र लिखे हैं उनको किस तरीके से चांट करना है, उनका कैसे उच्चारण करना है, वो ब्राह्मणास में लिखा है. व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर एंड रूल टू फॉलो व्हाइल चांटिंग द मंत्रास रिटन इन द वेद, दे आर रिटन इन ब्राह्मणास. Second book is known as Aranyakas.
सेकेंड सेट ऑफ बुक होते हैं आर्यन कास्ट, जिनको हम बोलते हैं फॉरेस्ट बुक्स ऑल्सो, जिनको हम फॉरेस्ट बुक्स भी कहते हैं। ठीक है, नो इट इज पर्टिकुलर टू एवरी वेद, यहाँ लिखा हुआ है। फॉरेस्ट बुक्स का मतलब क्या है, दैट दे आर रिटन बाय हर्मिट्स, हर्मिट्स मतलब जो कि जंगलों में अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर रहते हैं। So while they did their meditation, whatever knowledge they received from the universal source, those were written down in Aryan caste. तो जितने भी बड़े संत पुरुष, योगी पुरुष जंगलों में रहते हैं, सेक्यूल्यूजन में मेडिटेशन के दौरान जो नॉलेज रिसीव करते हैं वो आर्यन कास्ट में उन्होंने लिख दी थी। ठीक है, सो इट इज सेड दैट द ब्राह्मणास एंड आर्यन कास्ट आर द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ वेदास, कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द वेदास। जो भी छोटी मोटी नॉलेज रह गई थी, जो भी कंक्लूजन एक्सप्लेन करना था, वो सारा कुछ ब्राह्मणास और आर्यन कास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक जो कि वेदों से रिलेटेड नहीं है, द नेक्स्ट बुक विच इज नॉट रिलेटेड टू वेदास एंड दैट इज उपनिषद। उसको हम बोलते हैं उपनिषद। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट उपनिषद, आप लोगों ने उपनिषद के बारे में सुना तो जरूर होगा। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद दैट मीन्स टू सिट नियर समवन, उपनिषद मीन्स टू सिट नियर समवन, किसी के करीब बैठना। ठीक है, नाउ दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद, ये लिटरल मीनिंग है टू उपनिषद का, to sit near someone. Now someone means the guru. उपनिषद में someone का मतलब है गुरु. Why you are sitting near the guru? To attain knowledge. ठीक है, so you can say that उपनिषद, कितने टोटल उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं टोटल। There are total 108 उपनिषद and उपनिषद they talk about two things only. उपनिषद दो चीजों के बारे में elaborately बात करते हैं। First is known as आत्मन, सेकेंड इज नोन एज ब्रह्मन। ठीक है, यानी कि आत्मन मीन्स योर सोल, आत्मन का मतलब हो जाता है आपका सोल, ब्रह्मन मीन्स द यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स द वन हु हैज क्रिएटेड दिस सोल, वो जिसने ये सोल क्रिएट किया है, जिसका अंश है ये सोल। ठीक है, टू थिंग्स दे टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स एंड दे टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन द आत्मन एंड ब्रह्मन। सो उपनिषद जो है ये क्या बात करते हैं, ये आपको रिलेशन बताते हैं, दे टेल यू अबाउट द रिलेशन बिटवीन योर सोल एंड द यूनिवर्सल पावर दैट क्रिएटेड योर सोल, जिसने आपके सोल को क्रिएट किया, उस यूनिवर्सल पावर के बीच का रिलेशन समझाया जाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। नाउ देयर आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद्स विच यूपीएससी अगेन एंड अगेन टारगेट्स इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट उपनिषद्स हैं, ठीक है, जिनको यूपीएससी बार बार टारगेट करता है। फर्स्ट उपनिषद इज नोन एज, राइट इट डाउन, इसको प्लीज लिख लीजिए, मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद एंड इट हैज गिवन अस द टर्म कॉल्ड सत्यमेव जयते। हमने ये जो वर्ड यूज किया है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, सत्यमेव जयते, यानी कि एवरी टाइम दिस ट्रूथ इट ओनली विंस, हर बार सच की ही जीत होती है। सो दैट टर्म हैज बीन टेकन फ्रॉम मांडुक्य उपनिषद, ये टर्म लिया है हमने मांडुक्य उपनिषद से। एंड प्लीज रिमेंबर दैट मांडुक्य उपनिषद इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, सभी उपनिषद से ज्यादा बड़ी ये मांडुक्य उपनिषद है। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द उपनिषद्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद पे आते हैं, दैट इज नोन एज द छंदोग्गय उपनिषद। दिस इज नोन एज द छंदोग्गय उपनिषद। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द फर्स्ट 3 आश्रमास ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफ के जो पहले 3 आश्रमास होते हैं उनकी बात करता है ना। व्हाट आर दीज 3 आश्रमास? अब ये कौन से आश्रमास हैं? एनीबडी हु कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो टोटल देर आर 4 आश्रमास, टोटल ना 4 आश्रम होते हैं। आश्रम मीन्स नॉट अ प्लेस टू लिव बट द फेजेस और स्टेजेस ऑफ लाइफ। आश्रम का मतलब होता है लाइफ के स्टेजेस। हर इंसान के लाइफ के 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज नोन एज ब्रह्मचर्य। पहला जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य स्टेज।
सेकेंड स्टेज इज नोन एज गृहस्था, गृहस्था हम लिखते हैं इसको, दिस इज द हाउस होल्डर स्टेज. थर्ड स्टेज इज नोन एज वनप्रस्था, when you retire from your worldly duties. And fourth stage is known as sannyasa, when you seek renunciation and you go into meditation, seeking the Lord, seeking the Almighty. ये होते हैं आपके लाइफ के 4 स्टेज अकॉर्डिंग टू द वेदास, अकॉर्डिंग टू द उपनिषद्स. ठीक है. ब्रह्मचर्य इज द स्टेज वेयर यू अटेन एजुकेशन बाय अटेंडिंग द गुरुकुल. इस स्टेज में आप एजुकेशन अटेन करते हो एक गुरु से, आप गुरुकुल में रहते हो. ठीक है. दिस इज द स्टेज. Then Gruhastha. Gruhastha is the stage when you are married, when you have a family, you are a householder. Vanaprastha stage when you go to forest. जब आप forest चले जाते हो, why? To meditate, meditate करने. When you retire from your worldly duties, you give all the responsibility to your son or your daughter and you go to the forest. Sannyas stage is to renounce all the worldly ties, यानी कि अब आप अपनी फैमिली को भी छोड़ देते हो, आप अपने रिश्तों को भी छोड़ देते हो. You renounce your ties and you go on in the world to spread the message of life to everyone. You try to spiritually uplift everybody. संन्यास स्टेज में आप लोगों को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए उनको एजुकेशन देने पहुंच जाते हो. यानी कि मेडिटेशन के बाद फाइनली you reach on to a stage where you understand what is this universe, you understand the truth behind creation and death, and then you try to spiritually uplift the others. These are the 4 stages. तो चांदोग्य उपनिषद टॉक्स अबाउट द फर्स्ट 3 आश्रमास ऑफ लाइफ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एंड वनप्रस्थ. यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को? ठीक है. ओके. नाउ देयर इज अ मंत्र इन द उपनिषद, वेरी फेमस मंत्र, दैट इज नोन एज ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय. तो ये जो श्लोक है, ये जो मंत्र है, ये हमने उपनिषद से ही लिया है एंड बेसिकली वी हैव टेकन दिस फ्रॉम छंदोग्य उपनिषद. ठीक है. दिस मंत्र मीन्स ओ डियर ऑलमाइटी, फ्रॉम अनट्रूथ लीड मी टू द ट्रूथ, फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू द लाइट एंड फ्रॉम डेथ लीड मी टू इमोर्टैलिटी. ठीक है. इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? इफ दिस मच इज क्लियर लेट मी नो. ओके. नाउ वी हैव स्टडीड द उपनिषद. अब बात आती है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन द वैदिक एज, दैट इज नोन एज वेदांता. दिस इज नोन एज वेदांता. अंत मीन्स एंड. अंत का मतलब क्या होता है? एंड. वेद मीन्स द बुक्स, वेदास. सो वेदांत मीन्स द एंड ऑफ वेदास. वेदांत का मतलब क्या होगा? वेदों का अंत. दैट इज नोन एज वेदांता. उसको हम वेदांता बोलते हैं. सो वेदांता टॉक्स अबाउट, इट टॉक्स अबाउट द फाइनल मैसेज ऑफ वेदास. ठीक है. सभी वेदों के फाइनल मैसेज को समराइज किया गया है. ठीक है. उसको शॉर्टन अप किया गया है और समझाया गया है वेदांत में. द मैसेज, द रियल एक्चुअल मैसेज ऑफ ऑल द वेदास हैव बीन समराइज्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन वेदांता. ठीक है. एंड वेदांता दे कंडेम, राइट इट डाउन, दे कंडेम दी सैक्रिफाइसेस, दैट इज बलि चढ़ाना किसी की. आप किसी की बलि चढ़ाते हो, ह्यूमन एनिमल सैक्रिफाइस या ह्यूमन सैक्रिफाइस, एंड सेरेमनीज, किसी भी तरीके का यज्ञ हवन. ठीक है. ये सारी चीजें बेकार बताई गई हैं. दे हैव सेड टू रीच द ऑलमाइटी ऑल यू नीड इज नॉलेज एंड ऑल यू नीड इज डिवोशन एंड पेशेंस. अगर ऑलमाइटी को समझना है तो पेशेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए और डिवोशन चाहिए. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज नोन एज वेदांगा. ठीक है. अब अंग का मतलब क्या होता है? अंग मीन्स लिम्स, आपके बॉडी के अंग, आपके हाथ पैर. ठीक है. आपके कंधे, तो ये सब आपके अंग हैं. सो वेदांग मीन्स द लिम्स ऑफ वेद. इसको हम बोलते हैं वेदों के अंग, द लिम्स ऑफ वेद. ठीक है. एंड वेदांगा मीन्स द लिम्स ऑफ वेद एंड दीज आर सप्लीमेंट्री टेक्स्ट. ये है क्या? ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट कहलाते हैं. These are the supplementary text which help you in proper recitation of and understanding of Vedas. They help you in proper recitation, in the proper recitation and understanding of and proper
अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदास। ठीक है, दिस इज फॉर द कॉमन पीपल लाइक अस, ये हमारे लिए है जिनको नॉर्मली संस्कृत ढंग से पढ़नी नहीं आती, the people who are not master of Sanskrit, for them Vedangas have been written, that these will help you to understand how to recite the mantras and how to understand the Vedas, what is the real meaning of Vedas. Now in Vedanga there are 6 sutras which are written. वेदांगा में ना 6 सूत्र लिखे गए हैं। 6 sutras means 6 small books of knowledge। ठीक है, what are those 6 sutras? अब ये 6 sutras क्या है? Let us understand that. The first sutra is known as शिक्षा। पहले सूत्र को बोलते हैं शिक्षा, which means phonetics, जिसका मतलब होता है phonetics। phonetics का मतलब होता है pronunciation। What is phonetics? It is the correct pronunciation। समझ आ रही है बात? phonetics का मतलब होता है आप, it is related to your speech, या आपकी स्पीच से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल द गायत्री मंत्रा, ठीक है, यूजुअली पीपल से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, यूजुअली पीपल सिंग द गायत्री मंत्र लाइक दिस, राइट? बट यू नो रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ गायत्री मंत्र, जो रियल प्रोनाउंसिएशन है गायत्री मंत्र का, वो क्या है? द रियल प्रोनाउंसिएशन इज ओम भूर्भुवः स्वः, नॉट स्वाहा, स्व, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, नॉट धियो यो नः प्रचोदयात्, नो, इट्स धियो यो न प्रचोदयात्। द साउंड ऑफ फ इज कमिंग, धियो यो न। ओके, so this is taught by शिक्षा सूत्र of वेदांगा। वेदांग के शिक्षा सूत्र में समझाया गया है कि अगर मंत्रों का करेक्ट उच्चारण नहीं किया तो उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। इफ यू आर नॉट प्रोनाउंसिंग द मंत्रास करेक्टली देन इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, ऑन योर माइंड। ओके, पॉइंट्स क्लियर हो गए? नाउ द सेकेंड सूत्र इज नोन एज कल्प। सेकेंड सूत्र को हम बोलते हैं कल्प। Kalp means the ritualistic science. It means the ritualistic science. Now when you perform any puja, ठीक है, in that at that time you require certain samagri, right? You require certain elements to perform the puja. For example, the ghee should be in certain quantity, then there should be logs of wood, then there should be water, some holy leaves, the bamboo tree, etc. So all these ritualistic signs, what things you require to perform a havan, to perform a puja, that is written in the Kalpa Sutra. ठीक है, आपको कोई जो सामग्री चाहिए होती है ना पूजा करते टाइम, वो सारी चीजें कल्प सूत्र में लिखी हैं। थर्ड इज नोन एज ज्योतिषा। ठीक है, नाउ व्हेनेवर यू डू एनीथिंग इन लाइफ, देयर आर सम पीपल हु ऑलवेज लुक एट द सेक्रेड टाइम, द करेक्ट होली टाइम टू परफॉर्म सर्टन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर पूजा हो रही है तो मुहूर्त होता है, वी टॉक अबाउट मुहूर्त, राइट? तो वो हमें किससे पता चलता है? ज्योतिष से ही पता चलता है, एस्ट्रोनॉमी। To perform certain havan, certain yagya, for example when you perform marriage rituals, right, you look at the planetary movement, then you decide on a day and time at which the marriage ritual will be performed. जब शादी की बात आती है तो क्या होता है? प्लैनेट्स की मूवमेंट स्टडी की जाती है ना, उसी के बेसिस पे आप टाइम निकालते हो। ठीक है, कि भाई इस टाइम पर शादी होगी, इस दिन पे शादी होगी, मुहूर्त निकालते हो। सो दैट इज बिकॉज ऑफ ज्योतिष। ठीक है, आपका फोर्थ पॉइंट होगा इसमें व्याकरण। व्याकरण मीन्स ग्रामर। ठीक है, वेन एवर यू आर pronouncing any mantra, or you are writing any mantra, or you are pronouncing any shloka, you need to pronounce it with correct grammatical knowledge. Grammatical knowledge correct रहेगी तो उस मंत्र का उतना ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट होगा आपके ऊपर। ठीक है, सो व्याकरण, द नॉलेज ऑफ ग्रामर ऑफ द मंत्रास आर रिटन इन द व्याकरण सूत्र। देन कम्स निरुक्ता। निरुक्ता का मतलब होता है आइटमोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय आइटमोलॉजी? इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं। What do you understand by the term etymology? It means the study of origins and history of words. ठीक है, words कहाँ से origin हुए? For example, we studied in the very first slide. बिल्कुल पहली स्लाइड में हमने पढ़ा था ना that Ved word was originated from the root word called Vid.
वेद जो वर्ड आया है ये कहां से आया है? रूट वर्ड कॉल्ड विद. सो दिस इज नोन एज आइटमोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स. शब्द कहां से ओरिजिनेट हुए हैं ये पढ़ना. ठीक है, सो राइट इट डाउन. इट इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन्स एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स. शब्दों का कहां से ओरिजिनेशन हुआ है. नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट इज छंद. ठीक है, व्हाट इज छंद? छंद मीन्स मेट्रिक्स. इन लिरिकल, इन पोएटिक फॉर्म, व्हेन यू ऑर्गेनाइज दी मंत्रास, दैट इज नोन एज छंद. जब आप पोएटिक फॉर्म में, लिरिकल फॉर्म में मंत्रों को ऑर्गेनाइज करते हैं उसे हम छंद बोलते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट सूत्रास विच आर रिटन इन वेदांगा, जो कि वेदांगा में लिखे गए हैं. पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? इफ द दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है. ठीक है, इसको मिस मत करना किसी भी एस्पेक्ट में. इट्स अ पार्ट ऑफ योर आर्ट एंड कल्चर. ओके, दे कैन आस्क यू दिस इन प्रीलिम्स, बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं क्वेश्चन. चलो अब बात करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन की. ठीक है, इन द वैदिक सिविलाइजेशन, व्हाट वाज द सोशल लाइफ? सोशल लाइफ किस तरीके की थी ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यन? ऋग्वेदिक आर्यंस की सोशल लाइफ किस तरीके थी, ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्यंस, जब हम आर्यंस की बात करते हैं विच फॉर्म्ड द ऋग्वेदिक पीरियड, द आर्यंस they used to live in the land of Sapta Sindhu. Sapta means 7, Sindhu means Indus river. तो they were located near the Indus river. ये Indus river के पास located थे. Sapta Sindhu is also known as the land of 7 rivers, Indus and its tributaries. ठीक है, नाउ व्हाट वर दी 7 रिवर्स? अब ये 7 रिवर्स कौन कौन सी थी? फर्स्ट रिवर वॉज नोन एज सिंधु. सिंधु मीन्स इंदस रिवर. ठीक है, सेकेंड रिवर वॉज नोन एज विपाश, इसको हम सेकेंड बोलते थे. विपाश मीन्स 20. ठीक है, जिसको व्यास भी बोलते हैं. थर्ड वॉज नोन एज वितास्ता, थर्ड को हम बोलते हैं वितास्ता. वितास्ता इज ऑल्सो राइट नाउ नोन एज झेलम. Then fourth is known as परुशनी. फोर्थ हम बोलते हैं परुशनी. परुशनी right now is known as रवि रिवर. ठीक है, विच इज पाकिस्तान में जो है. Then next is known as असिकनी. नेक्स्ट रिवर जो है वो है आपकी असिकनी. असिकनी मीन्स चेनाब, मॉडर्न डे चेनाब. एंड सिक्स्थ इज नोन एज शुतुद्री. सिक्स्थ जो रिवर है उसको शुतुद्री बोलते हैं, विच इज नोन एज सतलुज. And the last one is known as सरस्वती, which is dried up right now, जो कि अब इमेजिनरी रिवर बन गई है, ड्राई अप हो चुकी है. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? सो दिस वॉज द लैंड ऑफ सप्त सिंधु वेयर द आर्यंस यूज्ड टू लिव. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ आर्यंस, जब हम बात करते हैं आर्यंस की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मेंस. Political structure of Aryans, if we look at it, there was a monarchical form of government. Government जो थी monarchical थी. ठीक है, and here in this form of government, the king was known as Rajan. King को राजन कहा जाता था. And he was also known as Gopa. इसको गोपा भी बोला जाता था because he used to, he was known as Gopa और गोपति, इसको गोपति भी बोला जाता था बिकॉज ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ काउज ऑफ हिज विलेज. अपने विलेज के काउज का प्रोटेक्टर माना जाता था गोपति. ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ काउज इन हिज विलेज. सारी गायें जो होती थी उस गांव में उसकी देखभाल और रक्षा करता था राजन. ठीक है, दैट इज वाई इन द ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड कृष्णाज बर्थ, लॉर्ड कृष्णाज फोस्टर फादर हु वॉज नंद, Raja Nand, he all the cows of the state of Brijvasan, they were at the house of Nand. ठीक है, तो कृष्ण के जो फोस्टर फादर थे ना नंद, उनके घर के आसपास सारी गायें होती थी उनके एरिया की. ठीक है, उनके गांव की. क्यों? क्योंकि वो गोपा थे. बिकॉज ही वॉज गोपति, ही वॉज गोपा. ही यूज टू प्रोटेक्ट, ही यूज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द काउज. एंड द क्वीन वॉज नोन एज
क्वीन को किस नाम से जाना जाता था? शी वॉज नोन एज महिषी, ठीक है, शी वॉज नोन एज महिषी। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देयर वर पेट्रियार्कल फैमिलीज, ठीक है, तो यहाँ पर ना पेट्रियार्कल फैमिलीज थी, यानी कि पिता के साइड की फैमिली डोमिनेंट रहती थी, ठीक है। एंड इन दिस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर द जना, it was the largest social, it was the largest social, ठीक है, it was the largest social unit in ऋग्वेदिक times। जना जो थी वो लार्जेस्ट सोशल यूनिट थी वैदिक टाइम्स में। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेलो, यस, नहीं बात कर। तो जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वी हैड जना। जना मीन्स द ट्राइबल पीपल ऑफ ऋग्वेदिक एरिया, ठीक है, ऋग्वेदिक एज के जो ट्राइबल पीपल थे ना उनको जना बोलते हैं। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिट हुआ करती थी। एंड दीज जनास दे वर ऑलवेज इन फाइट विद द नॉन आर्यन ट्राइब। ये तो जनास थे ना, इनकी हमेशा लड़ाई रहती थी। दे ऑलवेज यूज्ड टू इंडल्ज इन क्लैशेस विद द पानीस। Panis is known as the dark complexioned Aryan people, non-Aryan people, sorry, ठीक है, non-Aryan people। तो ऋग्वेद में ऐसा माना गया है कि पनीस मतलब डीमंस, ठीक है। इन ऋग्वेद, इन सम ऑफ द वेदास, द पनीस रेफर टू द डीमन क्लास पीपल, ठीक है, जो हमेशा साधु संतों पे अटैक करते रहते थे। सो दे वर ऑलवेज इन क्लैश विद द पानीस, हमेशा इनके बीच में लड़ाई रहती थी। दे यूज टू ऑलवेज स्टील अवे देयर काउज, इनकी गायें जो थी उनको चुरा के ले जाते थे। तो जना और पनीस की बनती नहीं थी, ठीक है। एंड देयर वर सोशल ग्रुपिंग्स ऑल्सो इन दिस टाइम पीरियड, there were social groupings also, and in these social groupings there were two types of groups. First was known as kul, kul means family, ठीक है, कुल का मतलब होता है फैमिली। सेकेंड वॉज नोन एज ग्राम, ग्राम और विशु, ग्राम और विशु मीन्स विलेज, ग्राम और विशु का मतलब होता है विलेज, ठीक है। यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? सो दीज पॉइंट्स आर क्लियर एवरीवन? ओके। नाउ देयर वर ट्राइबल असेंबलीज ऑल्सो विच यूज टू टेक प्लेस। ऋग्वेदिक पीरियड में ना ट्राइबल असेंबलीज भी होती थी जो कंडक्ट कराई जाती थी। दीज ट्राइबल असेंबलीज वर नोन एज सभास एंड समितिज। इन ट्राइबल असेंबलीज को हम सभास एंड समितिज कहा करते थे, ठीक है। एंड इन दीज असेंबलीज मेजर पॉइंट्स, मेजर इश्यूज वर डिस्कस्ड, ठीक है। जितने भी जो भी मेजर सीरियस इश्यूज हुआ करते थे सभा और समिति में डिस्कस किए जाते थे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द सोशल स्ट्रक्चर, अब बात करते हैं हम सोशल स्ट्रक्चर की। ऑलराइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, जीएस पेपर 1 सोसाइटी के लिए। नाउ इन द सोशल स्ट्रक्चर द विमेन दे वर हाईली रिस्पेक्टेबल। इस सोशल स्ट्रक्चर में अर्ली वैदिक पीरियड में औरतों की काफी इज्जत होती थी। दे हैड हाईली रिस्पेक्टेबल पोजीशंस इन द सोसाइटी। दे वर ऑल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन the sabhas and samitis, that is the tribal assemblies। जो भी आपकी सभाज और समितिज हुआ करती थी उनमें इनको अलाउ किया जाता था कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड एट दैट टाइम ना देयर वर विमेन पोएट्स ऑल्सो, दैट मीन्स फुल फ्रीडम वॉज गिवन टू विमेन। देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, जेंडर के बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ विमेन पोएट्स आर लोपामुद्रा, उस टाइम की कुछ विमेन पोएट्स थी जिनका एग्जाम्पल है लोपामुद्रा, घोषा, ठीक है, एंड अपाला, दीज आर दी विमेन पोएट्स ऑफ दैट टाइम। विश्वारा, ठीक है, सो विश्वरा, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, दीज आर दी फेमस विमेन पोएट्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। एंड एट दैट टाइम दी कैटल्स, especially the cows, they became very important। उनको पूजा जाता था, दे वर वर्शिप्ड, एंड टू किल काउ वॉज अ ह्यूज ऑफेंस। गाय की हत्या करना बहुत ही बड़ा ऑफेंस माना जाता था।
एंड इन द सोशल स्ट्रक्चर मोनोगैमी वॉज प्रैक्टिस्ड। मोनोगैमी का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मोनोगैमी इट वॉज प्रैक्टिस्ड, क्या होता है मोनोगैमी का मतलब, जल्दी से बताएं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यस, सिंगल वाइफ, if you are marrying then you will only get married once, आप एक ही बार शादी करोगे। ये नहीं कि आपकी 5 पत्नियां हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, या 4 पत्नियां हैं, 2 पत्नियां, या 10 पत्नियां हैं, वन टाइम मैरिज, ठीक है। मोनोगैमी वॉज प्रैक्टिस्ड बट पॉलीगैमी इट वॉज ऑब्जर्व ओनली अमंग द रॉयल्टी एंड नोबल फैमिलीज, ठीक है। यानी कि पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा शादी करना। तो जो नॉर्मल लोग थे, जो आपके सिटीजन्स थे, प्रजा थी, वो तो मोनोगैमी प्रैक्टिस करती थी। बट जो राजा महाराजा हुआ करते थे, यानी कि गोपति, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर, द गोपति, द राजन, ही वॉज अलाउड टू अंडरटेक पॉलीगैमी, वो ज्यादा शादियां कर सकता था, ठीक है। एंड देयर वॉज नो चाइल्ड मैरिज इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड, चाइल्ड मैरिज बिल्कुल भी नहीं थी, देयर वॉज नो चाइल्ड मैरिज, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। एंड देयर वॉज नो हेरिडिटी ऑल्सो, कोई हेरिडिटरी भी पोजिशंस नहीं थी। दैट मीन्स इफ द गोपति इज द राजा राइट नाउ, पर्सन ए इज द गोपति, हिज सन विल नॉट बिकम द नेक्स्ट गोपति, गोपति विल बी दैट पर्सन हु हैज मोर नंबर ऑफ काउस, गोपति वही बनेगा जिसके पास ज्यादा गायें होंगी, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अब बात कर लेते हैं जरा हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की। एट दैट टाइम व्हाट वाज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, द इकोनॉमी वाज पैस्टोरल, बिकॉज वो कैटल्स पे ही डिपेंडेंट थे, दे वर डिपेंडेंट ऑन कैटल्स ओनली, सो इट वाज पैस्टोरल इकोनॉमी। दे यूज्ड टू डू कैटल रेयरिंग, ठीक है, भेड़ बकरी ही चराया करते थे, दूध दही निकाल लिया करते थे, सो इट वाज पैस्टोरल एंड कैटल रेयरिंग। दे ऑल्सो प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, इन्होंने एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस किया था, ठीक है, ऑल्सो प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर। एंड दे हैड हॉर्स चैरियट्स। अब देखो, घोड़े तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी थे, द हॉर्सेस वर देयर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो, बट द पीपल ऑफ IVC दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज द हॉर्सेस। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनको नहीं पता था घोड़ों को कैसे यूज करना है, बट इन द पीरियड ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, दे न्यू हाउ टू यूज द हॉर्सेस, दे हैड हॉर्स चैरियट्स, ओके। पेस्टोरल इकोनॉमी वॉज डोमिनेंट, यानी कि एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल पे प्रैक्टिस होता था, बट उनकी मेजर डोमिनेंट इकोनॉमी पेस्टोरल थी, एग्रो बेस्ड नहीं थी। दे प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर बट ऑन अ स्मॉल स्केल। पेस्टोरल डोमिनेंट इकोनॉमी थी, यानी कि ये दूध दही निकालकर, भेड़ बकरियों को चराकर ही अपना गुजारा करते थे, ठीक है। दे यूज्ड टू सर्वाइव ऑन द कैटल्स ओनली। एंड रिवर्स वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, तो यस, ट्रांसपोर्टेशन वॉज स्टैब्लिश्ड, ठीक है। रिवर्स they were used for transport, that means इनको बोट्स का यूज करना आता था, they knew how to make boats, ships नहीं बनाई है बड़ी बड़ी, they did not make huge ships but they created boats, ठीक है। and at that time cotton was also known in Indus Valley civilization also, ठीक है। so cotton and woolen fabrics they were also spun, they were also used, and initially they used to handle the barter system, इन्होंने बार्टर सिस्टम का यूज किया था, ठीक है। बट लेटर ऑन इन द लेटर वैदिक पीरियड में क्या किया, दे स्टार्टेड यूजिंग द कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स विच वर नोन एज निष्का। इन गोल्ड कॉइन्स को निष्क बोलते थे, सो दे वर नोन एज निष्का इन द ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अबाउट द रिलीजन, now what kind of religion was there in the Rigvedic period? Rigvedic period में religion कैसा था? They used to worship natural forces. अब इसके ऊपर 2011 में prelims में question आया था। In 2011 in prelims question came on the religion of Rigvedic period. They used to worship the natural forces. Natural forces की पूजा अर्चना की जाती थी, ठीक है। Like natural forces like earth, like fire, like water, like rain, thunder, etc. These are the natural forces. इनको हम natural forces कहते हैं। तो points are clear, and they were personified into deities. For example, Indradev,
Surya Dev or Vayu, Pavan Dev, right? Now Indra, that is the lord of thunder. Indra was the lord of thunder. He was the most important deity. ये सबसे ज्यादा पूजनीय थे. Then Lord Krishna, what he did, he made people to worship the mountain Govardhana. ठीक है. तो शुरुआत में इंद्रदेव की पूजा ज्यादा की जाती थी. ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी, सबसे इंपॉर्टेंट डेटी थे ये. एंड अदर डेटीज वर पृथ्वी, दैट इज अर्थ. ठीक है. देन वरुण, दैट इज रेन. वरुण गॉड वॉज एसोसिएटेड विद रेन. देन अग्नि वॉज एसोसिएटेड विद फायर, अग्निदेव. ठीक है. तो ये आपके विंड के साथ कौन एसोसिएटेड था? वायुदेव. ठीक है. क्लियर हो गई बात. सो देयर वर नो टेम्पल्स. अर्ली वैदिक पीरियड में ना टेम्पल्स नहीं हुआ करते थे, बिकॉज नेचर वॉज वर्शिप्ड. टेम्पल्स, वाई टेम्पल्स विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है. एंड देयर वर नो आइडल ऑल्सो. मूर्तियों की पूजा भी नहीं होती थी, क्योंकि नेचर की पूजा हो रही है तो मूर्ति की क्या जरूरत. सो दिस वॉज द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड. पार्ट क्लियर हो गया? Okay, so in the next class we will study about the महाजनपद period and later Vedic period. नेक्स्ट क्लास में हम महाजनपद और लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ेंगे. दिस वॉज ऑल अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड. आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन. आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो. इफ यू आर enjoying these, you can subscribe to Unacademy Plus. You can use code Sharma20 to get 10% discount. So this was all for today. I hope you enjoyed the session. If you really did enjoy, do let me know in the comment section. Thank you.